Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter 18 Association of Attributes is under discussion today, lecture number 4, and the topic is test of independence. In this lecture, students, I will discuss an important exercise question for the topic test of independence. Now students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic test of independence with an exercise question. The contents of today's lectures is only based on exercise question for test of independence. Now I'm going to apply an exercise question on the topic test of independence. The statement of this exercise question is test whether there is any relation or association between gender and color at 5% level of significance. Here students, we have two attributes, gender and color. One of the attribute has two categories, let's say gender has male and female two categories, and the colors has three categories, red, white and blue, and whether we check the both attributes are independent or not in this question. And we have the following observations. These are called the observed frequencies: 20, 40, 40, 20, 60 and 20. Now students, I'm going to start solution of this question. In the solution of these questions, we follow the 6 steps. First step is write as state the hypothesis. First, we write the null hypothesis, which is denoted by H naught. The attributes are independent. We can also write as there is no association between gender and color. इसके against hypothesis write करेंगे, which is alternative hypothesis and denoted by H1. The attributes are not independent. It means that there is association between gender and color. Second step is the level of significance using alpha equal to 5%. We can also write as alpha equal to 0.05. And the third step is test statistic. Here we use the formula for chi-square, FO minus FE whole square over FE, and now taking its sum, where FO equal to observed frequencies and FE equal to expected frequencies. Now the fourth step is computations. Here we have to find the expected frequencies using the observed frequencies. First we write the table as it is and find its totals row wise and column wise. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो टोटल्स फाइंड करें रोज के टोटल्स. फर्स्ट जो आपके पास कैटेगरी है रेड, इसमें 20 प्लस 40 इक्वल टू 60. सेकेंड रो टोटल जो है अगेंस्ट वाइट 40 प्लस 20 इक्वल टू 60, or then blue 60 plus 20 equal to 80, or then students taking total of two columns male and females 20, 40 and 60, which is 120. और females के लिए आपके पास column wise total, that is 40 plus 20 plus 20 equal to 80. Then taking its again total 60 plus 60 or plus 80, which is 200. और अगर row wise total करेंगे तो 120 plus 80 equal to 200. So that is the grand total 200. Now students, we find the expected frequencies using its rows and columns totals. So FE is equal to row total into column total or divided by grand total. तो आपने किसी भी observed frequencies के against उसका row total और उसके column total को multiply करेंगे और then उसको divide कर देंगे its grand total से, और देन यू कैन फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. तो फर्स्ट आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मेल और रेड के अगेंस्ट विच इज 20, इसके अगेंस्ट हमारे पास रो में टोटल जो है 60 है और इसके कॉलम का टोटल जो है आपके पास 120 है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसको डिवाइड कर दें इट्स ग्रैंड टोटल विच इज 200. देन टेक इट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज which is 36. Similarly आपके पास नेक्स्ट जो है फीमेल के अगेंस्ट रेड में 40 है. 40 आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है. इसके अगेंस्ट आपके पास रो में टोटल जो है वो 60 और कॉलम में टोटल जो है वो 180 है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसको ग्रैंड टोटल से डिवाइड कर दें तो 40 के अगेंस्ट आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड होगी विच इज 24. सिमिलरली आपने सेकेंड रो में 40 के अगेंस्ट रो टोटल जो है वो 60 है. 60 को मल्टीप्लाई करें कॉलम टोटल 120 से और डिवाइड कर दें ग्रैंड टोटल 200 से, तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी 36.
सिमिलरली आपने रिमेनिंग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना है यूजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स टोटल देन डिवाइडेड बाय इट्स ग्रैंड टोटल. दिस इज द वे ऑफ finding expected frequencies. Fourth step computation is continue. Here we find the value of chi-square statistic using formula. First students we write the observed frequencies in columns. तो हम लोग first heading देंगे FO की और अपनी observed frequencies given observed frequencies को write करेंगे column में 20, 40, 40, 20, 60 and 20. Then students we find the expected frequencies as और इसको हम लोग write करेंगे next column में which is denoted by FE 36, 24, 36, 24, 48 and 32 और इसको मैंने रो वाइज जो है राइट किया है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को और सिमिलरली इसी के अगेंस्ट हमने राइट की है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जिसको ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं. इसको भी मैंने राइट किया है रो वाइज 36, 24, 36, 24, 48 एंड 32. नाउ स्टूडेंट्स मैं अप्लाई करूंगा फॉर्मूला और इसके लिए सबसे पहला स्टेप्स जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से माइनस करके इसका स्केयर यूज करेंगे और देन स्टूडेंट्स हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड कर देंगे. तो यू कैन आल्सो फाइंड द काई स्केयर कैलकुलेटेड वैल्यू. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 20 को माइनस करना है 36 से और इसका सम यूज करेंगे 20 माइनस 36 16 और इसका स्केयर 256 और इसी को स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट स्टेप में 36 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड कर दें तो 256 डिवाइडेड बाय 36 तो इसको हम लोग राइट करेंगे नेक्स्ट कॉलम में विच इज 7.11. देन आपने कैलकुलेटर पे राइट करना है 40 नेक्स्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और इसके अगेंस्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज 24, 40 माइनस 24 अगेन 16 का स्केयर 256 राइट करेंगे इस कॉलम में थर्ड कॉलम में और इसको 24 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड कर दें तो आंसर इज 10.67. देन अगेन नेक्स्ट आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 40 है 40 माइनस 36 का स्केयर विच इज 4 का स्केयर 16 और 16 को डिवाइड कर दे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज 36 पे आंसर इज 0.44. तो हेयर स्टूडेंट्स आपने वन बाय वन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को डिफरेंस यूज करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से देन टेकिंग इट्स स्केयर और देन फाइंड द देन डिवाइडेड बाय इट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एंड देन लास्ट कॉलम जो आपके पास जनरेट होगा उसका हम लोग सम यूज करेंगे तो 7.11 प्लस 10.67 प्लस 0.44 प्लस 0.67 plus 3.00 plus 4.5 answer is 26.39. This is the value of calculated chi-square. Chi-square की calculated value आपने find कर ली है using observed frequencies and its expected frequencies. This is the complete fourth step. Now students, fifth step is the critical revision. Here we have the question where two attributes and one of the attribute has two categories and one of the attribute has three categories or here three rows and two columns. तो R की वैल्यू 3 यूज करेंगे और C की वैल्यू 2 यूज करेंगे. Now students write its formula for degree of freedom D dot F R minus 1 into C minus 1. R की वैल्यूज 3 यूज करेंगे और C की वैल्यू 2 यूज करेंगे 3 minus 1 into 2 minus 1 आंसर इज 2. देन स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड करेंगे टेबल वैल्यू और टेबल वैल्यू के लिए काई स्क्वायर अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसके लिए अल्फा यूज करेंगे जो कि हमें सेकंड स्टेप में गिवन था 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने फाइंड की है 2. तो नाउ स्टूडेंट्स गो टू द काई स्क्वायर टेबल और वेयर वी चेक द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो आपने अल्फा 0.05 और इसको अगेंस्ट आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 में चेक करना है. आंसर इज 5.991 है और देन स्टूडेंट्स दिस इज द टेबल वैल्यू फ्रॉम काई स्क्वायर टेबल और आपने कैलकुलेटेड वैल्यू जो फाइंड की है इन 4 स्टेप्स विच इज 26.39. देन हम लोग लास्ट स्टेप जो है वो कंक्लूजन का यूज करेंगे और कंक्लूजन्स में हम लोग जो है वो कंडीशन यूज करेंगे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर है
chi square alpha degree of freedom that is the tabulated value, तो हम अपने hypothesis को reject कर देंगे अगर ये hypothesis जो है एक कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, तो इट मींस दैट कि हम लोग अपने हाइपोथेसिस को जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग राइट करेंगे chi square कैलकुलेटेड वैल्यू विच इज 26.39 और chi square अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबुलेटेड वैल्यू इज 5.991। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi square इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, सो लाइज इन द रिजेक्शन रीजन। तो सो वी कैन से दैट हाइपोथेसिस जो है h नॉट इसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू, सो रिजेक्ट h नॉट और वी कंक्लूड दैट एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। और हमने एक्सेप्ट कर लिया है h1 को और रिजेक्ट कर दिया है h नॉट को। दिस इज द कंप्लीट कंक्लूजन ऑफ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, whether we check the attributes are independent or not. In this lecture, an important exercise question for test of independence has been discussed. Inshallah students, next lecture में आपसे मुलाकात होगी next topic के साथ। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।